Hello students, welcome to EduCraft Academy. In the last class we studied about absorption by roots. Plants absorb water and minerals from the soil. Now this water is absorbed by the root and then this water gets transported to different parts of the plant through xylem vessels. This water also gets transported to the leaf and from the leaves transpiration takes place. Mainly from the leaves transpiration takes place. ठीक है, यही समझ आया कि water is absorbed by the roots. It is then transported to different parts of the plant through xylem. Then it reaches leaf from where the transpiration takes place. Now what is transpiration? Transpiration is the loss of water from the aerial parts of plant. Transpiration is the loss of water in the form of water vapor from the surface of aerial part of plant, mainly from the leaf. Transpiration क्या है? It is the loss of water. Loss of water. ठीक है, तो water आया कहाँ से है? By absorption by root. हमने last chapter में यही सब सीखा है, absorption by roots, कि water किस तरीके से absorb होता है, right? By osmosis, by diffusion. चलो, तो आपने देखा कि पानी वाटर लॉस हुआ, दिस इज ट्रांसपिरेशन. ठीक है, अब देखो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है? दिस इज रूट्स. वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? व्हाट आर द अडेप्टेशंस ऑफ रूट्स में से क्या होता है? रूट हेयर्स आर वेरी थिन, यूनिसेल्युलर, लॉन्ग एंड नैरो. And being long and narrow, the surface area is more and there are numerous root hairs, and as the surface area is more, so more water absorption take place. Then the root hair, it contains cell sap, and this cell sap has higher concentration than surrounding solution. Cell sap has higher concentration than surrounding solution, and we saw that when the surrounding solution is hypotonic, then endosmosis takes place. Very important, endosmosis takes place. Endosmosis यानी water moves inwards. In this way root hairs absorb water. ठीक है, देखो root hairs absorb water and then water is absorbed. Now this water is transported through xylem cells, है ना. Xylem and phloem, these are the conducting tissues present in plant. Name the conducting tissues. Xylem and phloem, these are the conducting tissues. They transport water to different parts of the plant, and from here this water, it reaches the leaf. It reaches to leaf from where the transpiration takes place. See this cohesion and adhesion in xylem. Remember what is cohesive force, what is adhesive force. कोहेजन यानी सिमिलर मॉलिक्यूल्स, याद रखना. कोहेजन यानी सिमिलर मॉलिक्यूल्स, एडहेशन यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. तो कोहेजन में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. एडहेशन में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जाइलम वेसल, है ना. कोहेजन एंड एडहेशन इन जाइलम. ठीक है, जाइलम. इस तरीके से वाटर इज ट्रांसपोर्टेड. नाउ हियर इट वाटर लीफ तक पहुंच चुका है. अब जब वाटर लीफ पर पहुंच चुका है तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. ठीक है, याद रखना है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन. What are the types of transpiration? Stomatal transpiration, cuticular transpiration, lenticular transpiration. ठीक है, stomatal transpiration, cuticular transpiration, lenticular transpiration. देखो ये लीफ है. लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा, एपिडर्मिस, अपर सरफेस ऑफ लीफ, द लीफ दैट इज एपिडर्मिस. और एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा. स्टोमेटा का शेप क्या है?
Stomata consist of two kidney shaped guard cells. Stomata are made up of two kidney shaped guard cells. किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, ठीक है. स्टोमेटा में एक ओपनिंग है, वहीं से वाटर लॉस, वहीं से ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है. द ट्रांसपिरेशन दैट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. आफ्टर दैट क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. तो कुछ लीव्स में क्या होता है, कुछ लीव्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है. कुछ लीव्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर, से सपोज कोई लीफ है उसके ऊपर वैक्सी लेयर प्रेजेंट होगा, दैट विल बी क्यूटिकल. और वैक्सी लेयर होने का फ़ायदा क्या है कि अगर ट्रांसपिरेशन को कम करना है, वाटर लॉस को कम करना है, तो क्या होगा, वैक्सी लेयर है तो इससे वाटर लॉस कम हो जाएगा. दिस इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. थर्ड इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. इट टेक्स प्लेस थ्रू लेंटिसेल्स. लेंटिसेल्स क्या होते हैं, दे आर special openings. Lenticels are the special openings that are present on woody stem, ठीक है. and the transpiration that takes place through lenticels is lenticular transpiration, ठीक है. types of transpiration is very important. अब देखो यहाँ से जितना भी पानी एब्जॉर्ब किया है 100%, वो सारा का सारा पानी यूज़ किस तरीके से होता है, तो 100% वाटर एब्जॉर्ब किया, जिसमें से 2 to 5% वाटर ही फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगा, राइट. वाटर का यूज़ प्लांट्स में यूज़ किया है फोटोसिंथेसिस, फूड मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है. फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो सिर्फ 2 to 5% वाटर ही फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है, बाकी 95% वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज हो जाएगा, ठीक है. जिसमें से भी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम अप टू 90% ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, ठीक है. चलो अब हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन देखते हैं. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, ठीक है. चलो, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स. स्टोमेटा, दिस इज, ये चीज़ याद रखना कि जो स्टोमेटा है वो लोअर सरफेस पर ज़्यादा होते हैं. मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस देन ऑन अपर सरफेस, ठीक है. मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस देन ऑन अपर सरफेस, ठीक है. अब एक थियरी है, पोटेशियम आयन एक्सचेंज थियरी. पोटेशियम आयन एक्सचेंज थियरी, देखो इसमें क्या होता है कि दिन के टाइम पर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है. फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ हो जाएंगे. तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होने से पीएच इंक्रीज हो जाएगा, और उससे जो स्टार्च फॉर्म हुआ है, स्टार्च वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में. स्टार्च विल गेट कन्वर्ट टू एसिड. एसिड क्या हो जाएगा, उसके बाद हायर पीएच पर जो ऑर्गेनिक एसिड है वो डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन और मेलेट आयन में. तो हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव हो जाएंगे नेबरिंग एपिडर्मल सेल्स में, और उनके एक्सचेंज में पोटेशियम आयन विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द गार्ड सेल्स, ठीक है. अब आयंस प्रेजेंट हो गए, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, गार्ड सेल्स के अंदर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है. पोटेशियम आयंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे गार्ड सेल्स में, और पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया. और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हम टोनिसिटी पढ़ रहे थे. तो जब पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सराउंडिंग सॉल्यूशन से, तो क्या होगा, सराउंडिंग सॉल्यूशन हाइपोटोनिक बन जाएगा, और हाइपोटोनिक होने की वजह से एंडोस्मोसिस होगा. वाटर एंटर कर जाएगा बाय एंडोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस से वाटर एंटर कर जाएगा, और जो सेल्स हैं, जो गार्ड सेल्स हैं, वो स्वेल हो जाएंगे, जिससे टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा. और टर्गर प्रेशर होने से जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है. स्टोमेटल ओपनिंग समझ आया ये पोटेशियम आयन एक्सचेंज थियरी से. सिंपल सी बात इतनी है कि पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा,
पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो एंडोस्मोसिस होगा, और एंडोस्मोसिस यानी जो नेबरिंग वाटर है वो अंदर एंटर कर जाएगा, नेबरिंग एंडोस्मोसिस हो जाएगा, जिससे टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट हो जाएगा नाइट टाइम पर। नाइट में इसका ऑपोजिट, जो पोटेशियम आयन एब्जॉर्ब हुए हैं वो पोटेशियम आयन बाहर आ जाएंगे। जब पोटेशियम आयन बाहर आ जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोटेशियम आयन्स बाहर आ जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम है इसलिए एक्सोस्मोसिस होगा, यानी वाटर आउटवर्ड्स आ जाएगा। एक्सोस्मोसिस, उससे क्या हो जाएगा, जो सेल्स पहले टर्जिड थे वो सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे, और सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे इसीलिए गार्ड सेल्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, गार्ड सेल्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, स्टोमेटा विल गेट क्लोज। दिस इज पोटेशियम आयन एक्सचेंज थियरी। ठीक है, समझ आया ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। चलो अब हम नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन देखते हैं, दैट इज क्यूटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ओपन स्टोमेटा, क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक है, चलो क्यूटिक्युलर ट्रांसपिरेशन यानी ट्रांसपिरेशन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम क्यूटिकल, that is cuticular transpiration. And what is cuticle? Cuticle is a thin layer of wax that is present over the leaf. That thin waxy layer is cuticle. Cuticle का importance क्या है? It prevents evaporation of water. तो अगर ट्रांसपिरेशन कम करना है तो to minimize transpiration, the upper epidermis secretes a thin layer of wax, that is क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, दिस इज अ थिन लेयर ऑफ वैक्स, थिन क्यूटिकल लेयर दैट इज प्रेजेंट ओवर द लीफ, एंड दिस इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। देन लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इट टेक्स प्लेस थ्रू लेंटिसेल। स्पेलिंग सही लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। लेंटिसेल, ठीक है, लेंटिसेल, CLE नहीं करनी है, लेंटिकल नहीं कर देना है, लेंटिसेल करना है। ठीक है, लेंटिसेल आर स्पेशल ओपनिंग दैट डेवलप इन वुडी स्टेम, ओल्डर स्टेम। लेंटिसेल आर स्पेशल ओपनिंग्स दैट डेवलप इन ओल्डर स्टेम। देखो ये ओल्ड स्टेम है, ओल्ड स्टेम में इस तरीके से लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर lenticels, these are openings that are present on woody stem. And the transpiration that takes place from these lenticels is lenticular transpiration. ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। अब देखो ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन बहुत ही सिमिलर है, इनका डिफरेंस भी कभी कभी आता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवोपरेशन? तो इवोपरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से वाटर लॉस है, दैट इज इवोपरेशन। बट ट्रांसपिरेशन क्या है? ओनली फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ट्रांसपिरेशन अगर प्लांट में हो रहा है, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, दैट इज ट्रांसपिरेशन। इवोपरेशन यानी किसी भी सरफेस से लॉस ऑफ वाटर है, दैट इज इवोपरेशन। ठीक है, इवोपरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस व्हेयरएज ट्रांसपिरेशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जो इवोपरेशन है उसमें ऑस्मोसिस ऐसी सब प्रोसेस का कोई रोल नहीं है, ऑस्मोसिस प्रोसेस का कोई रोल नहीं है, जबकि ट्रांसपिरेशन उसमें ऑस्मोसिस और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का रोल है। इवोपरेशन इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस व्हेयरएज ट्रांसपिरेशन इट इज़ स्लो प्रोसेस। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। चलो अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। तो फैक्टर्स क्या इफेक्ट करेंगे? देखो इंटरनल फैक्टर्स में क्या है? लीफ स्ट्रक्चर। लीफ स्ट्रक्चर यानी लीफ कैसा है? जैसे कि हमने देखा क्यूटिकल, अगर लीफ के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं है तो ज़्यादा होगा, राइट। फिर हमने स्टोमेटा देखा, तो अगर संकेन स्टोमेटा संकेन है, अंदर है बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, राइट। ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा अगर संकेन स्टोमेटा है। ठीक है, तो लीफ स्ट्रक्चर। देन लीफ एरिया से क्या हो जाएगा? अगर एरिया ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन फास्ट, अगर एरिया कम है तो ट्रांसपिरेशन स्लो, राइट।
तो ये तो याद ऐसे ही रह जाएगा, एरिया, एरिया यानी लीफ एरिया और लीफ स्ट्रक्चर। देन देयर इज वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ, लीफ में वाटर कंटेंट, अगर लीफ में ऑलरेडी वाटर कंटेंट कम है तो ट्रांसपिरेशन कम, अगर लीफ में वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा। ओरिएंटेशन यानी पोजीशन ऑफ लीफ, प्लेसमेंट ऑफ लीफ, और लीव्स किस तरीके से ओरिएंट है, अगर लीव्स ट्रांसवर्सली प्लेस्ड है, ट्रांसवर्सली तो सन रेज डायरेक्ट पड़ेंगी उन पे, तो उससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन फास्ट, और अगर लीव्स परपेंडिकुलर है तो ट्रांसपिरेशन स्लो। देन स्यूसुलेंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर लेटेक्स, कभी कभी लेटेक्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है तो इट रेड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, दीज आर द फैक्टर, दीज आर इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। ये क्या है, लीफ स्ट्रक्चर, लीफ एरिया, वाटर कंटेंट ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। ठीक है, ये याद रखना है। नाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या है, लाइट इंटेंसिटी, यानी लाइट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी से स्टोमेटा ओपन, तो लाइट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो स्टोमेटा, इट स्टिमुलेट्स द स्टोमेटल ओपनिंग, राइट, तो ओपन हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन फास्ट। अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो ट्रांसपिरेशन कम। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन फास्ट, अगर टेम्परेचर कम है तो ट्रांसपिरेशन स्लो। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, तो अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन होगा। देखो ट्रांसपिरेशन क्या है, वो डिफ्यूजन है एक तरीके से, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एटमॉस्फेयर, लीव्स के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट कम है तो ट्रांसपिरेशन होगा। अब ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर कंटेंट है तो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, देन विंड वेलोसिटी, तो विंड क्या करेगी, सपोज कि अगर ह्यूमिड एयर प्रेजेंट है तो इट विल रिमूव दैट ह्यूमिड एयर को ले जाएगी और ह्यूमिड एयर को रिप्लेस कर देगी ड्राई एयर से, तो उससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन फास्ट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल कंडीशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये याद रखने हैं आपको फैक्टर्स। ठीक है, लीफ स्ट्रक्चर, एरिया, वाटर कंटेंट, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल कंडीशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अभी इसके नेक्स्ट का हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलो गुड बाय, टेक केयर।